discussion today about the compliances under Companies Act 2013. Because as a chartered accountant, it is important from the point of view as a professional, as a statutory auditor, as an internal, to be aware about the mandatory compliances on the company from the point of view of the Companies Act 2013. Because we are the statutory auditor, we are appointed according to the Companies Act 2013. So we should be aware about so at least minimum compliances a company is required throughout the year. Because we know 1956 Act जो था और अब जो 2013 Act है, there is a very big difference between both the Act. 1956 में बहुत ज्यादा compliances नहीं होते थे अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें. 1956 Act में हमारे जो compliances थे बहुत लिमिटेड होते थे और जनरली क्या होता था वी आर अवेयर कि 1956 में compliances के लिए कंपनीज एक्ट के लिए होता था कि कंपनी हैव टू फाइल एट द एंड ऑफ द ईयर. कि जनरली एक टर्मिनोलॉजी थी कि कंपनी लोग के कंप्लायंस तो अक्टूबर और नवंबर मंथ में करने हैं, उससे पहले कोई कंप्लायंस नहीं करने हैं, कोई कंप्लायंस मैंडेटरी नहीं है. बट वो टर्मिनोलॉजी टोटली चेंज हो गई है, टोटली चेंज इन लास्ट सम इयर्स. लास्ट वीकेंड से जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है वो टर्मिनोलॉजी टोटली चेंज इसलिए हो गई है बिकॉज 2013 में द लेवल ऑफ कंप्लायंसेस हैज बीन चेंज इन अ वेरी डिफरेंट. प्राइवेट कंपनी के लिए भी बहुत सारे कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं. Last 7 years में भी we are continuously seeing कि regular base पे Companies Act में amendment आते हैं. On the regular base there are the amendment. Even I must say I am personally observing since last 4 years. Single month में अभी तक ऐसा नहीं गया है कि जब Companies Act में कोई amendment नहीं आया हो. Because of all of these lot of amendment, I have started my newsletter also on the amendment under Companies Act in the month. So practically we are discussing there कि last month में Companies Act में क्या amendment आया है. So every month we are having the amendment. ऐसा कोई भी month नहीं आया Companies Act में amendment नहीं आया. तो यहाँ पे chartered accountant के लिए this is a very important point because as a chartered accountant we are working on the taxation, we are working on the GST and the many other laws. उन सभी के साथ हमें Companies Act के amendment को भी cope up करना पड़ता है कि क्या amendment है. Because as a statutory auditor, सिर्फ इतना नहीं है कि हमें फाइनेंस ऑडिट करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने हैं. We have to check the compliance level of the company. Because अगर हमें Companies Act के compliances नहीं पता होंगे तो we will not able to qualify our report. We will not able to give a true and fair report. और जब भी हम ऑडिट की बात करते हैं तो we always talk about a true and fair review of the everything. So on the basis of same, definitely this topic is really a great topic. I must say this is a very good topic from the point of the chartered accounting because we are in the month of July. July, August, September are the month of the audits for the chartered accountant. You all will be busy in next 2.5 months in the audits only. So at that time, audit के time we should be aware कि latest क्या amendment है. We should be aware कि हमें क्या compliance check करने हैं. कौन से amendment 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट पे applicable होंगे, कौन से amendment applicable नहीं होंगे. So today in this webinar, in first 1.5 hours, we will try to discuss all those things. So we will start with the thing, what are the mandatory compliances for a private company? Because whether there is a private company which is having nil turnover, or there is a private company which is having 1,000 crore turnover, there are the some basic compliances. कि वो basic compliances सभी private limited companies पे applicable होते हैं. फिर चाहे वो nil turnover की company हो या otherwise वो 1,000 crore turnover की company हो. So today in this webinar we are going to discuss one by one all those such compliances which a company practically have to comply with. अगर जिस पे किसी के पास कोई exemptions नहीं है, चाहे आपकी कंपनी वर्किंग है नॉन वर्किंग है, because बहुत बार एक पॉइंट आता है कि कंपनी वर्किंग ही नहीं है तो क्या कंप्लायंस करते हैं. So today in this webinar we are going to discuss कि चाहे कंपनी वर्किंग हो या नहीं हो, but ऐसे कुछ compliances हैं कि जो कंपनी को करने ही पड़ेंगे. So those compliances first we will discuss in the first 1.5 hour in this webinar. Let me just share my screen for the benefit of everyone. So first we will discuss the annual compliance calendar of the under Companies Act for the private limited companies.
Because जैसा कि मैंने बोला, definitely today's our topic is to discuss the provision relating to the audit. But I must say this is the foremost requirement for the audit कि we must be aware कि हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या compliances है जो हमारे ऊपर mandatory लगेंगे ही लगेंगे. तो this is the first requirement from the point of view of the audit जो हमें पता होनी चाहिए. जब 2013 एक्ट आया था विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2014, तब जो कंपनीज एक्ट में जब अमेंडमेंट्स आए थे 2014 में, 1 अप्रैल 2014 से इतने ज्यादा कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे इंक्रीज हो गए थे कि एक लेवल पे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनीज के कंप्लायंसेस कॉमन हो गए थे. तो उस टाइम आईसीएआई ने, आईसीएसआई ने, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी मिनिस्ट्री के पास. उन सभी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे on 5th June 2015 and 13 June 2017 दो notifications लेके आए मिनिस्ट्री. These are called as a exemption notification for the private company. One thing I would like to say to all the person present in this webinar कि जो ये exemptions है ना private limited companies की जो exemptions है, the exemption about which I am talking about, these are the very important exemptions for the companies. So you if you are aware about these exemptions, बहुत अच्छी बात है. But if anyone of you have not completely aware about these exemptions, this is my personal request to everyone कि जब whenever you get time, आप इन दो notifications को read करना. Because as a chartered accountant, it can add many things in our we can say in our knowledge. Because 5 जून 2015 और 13 जून 2017 को दो नोटिफिकेशन में ऑलमोस्ट 40 एग्जाम्पशंस प्रोवाइड किए प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को. ऐसी एग्जाम्पशंस जो बहुत मैंडेटरी थी प्राइवेट कंपनीज के लिए. ऐसी एग्जाम्पशंस की अगर वो एग्जाम्पशंस नहीं होती तो आज के टाइम में प्राइवेट कंपनी का प्रेफरली वर्क करना भी मुश्किल हो जाता. बट एक्चुअली ऐसा है तो मिनिस्ट्री ने दी है, बट एग्जाम्पशंस ओपन एंडेडली नहीं है. एग्जाम्पशंस के साथ कोई ना कोई कंडीशन ऐड ऑन की हुई है. तो उन कंडीशंस को हमें एक्चुअली नोटिफिकेशन के थ्रू स्टडी करना चाहिए. जब ये नोटिफिकेशन आई थी उसके बाद प्राइवेट कंपनी को काफी रिलैक्स हुआ था और उसके बाद वी कैन से कि प्राइवेट कंपनी थोड़े से कंप्लायंसेस कम हुए थे. पर इन नोटिफिकेशन से कम तो हुए, बट लास्ट 3-4 ईयर में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो इतने सारे नए फॉर्म्स इंक्रीज हो गए हैं. पहले प्राइवेट कंपनी के सिर्फ ईयरली कंप्लायंस होते थे कंपनीज एक्ट में, कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली कंप्लायंसेस नहीं होते थे. बट अब हाफ ईयरली कंप्लायंसेस भी कंपनीज एक्ट में शुरू हो गए हैं और ईयर थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई कंप्लायंस चलता रहता है, इवन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी. जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ट्रांसफर ऑफ शेयर के राइट रिस्ट्रिक्ट होते हैं. मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते. पब्लिक से आप इनवाइट नहीं कर सकते शेयर सब्सक्राइब करने के लिए. ये बेसिक रिस्ट्रिक्शंस हम बोल सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रहती है. बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स क्या है? कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है आज के दिन में. आप 2 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट करना चाहते हो आप कब कर सकते हो. कोई बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल नहीं करना पड़ता एनजीटी 14 में. और इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करूंगा लेटर ऑन. सो अभी हमने बेसिक प्राइवेट कंपनी के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिटर कि हमें जितनी भी एग्जाम्पशंस है अभी जो मैंने डिस्कस किया, एग्जाम्पशंस जनरली हम मान के चलते हैं कि सभी प्राइवेट कंपनी को मिल गई है, बट ऐसा नहीं है. Every exemption having some conditions. So as a auditor जब भी आप कंपनीज की ऑडिट करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट चेक करना कि जनरली क्या होता है कि एग्जम्पशन मिली हुई है और हम उसके रिगार्डिंग कंडीशन चेक नहीं करते. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम द डायरेक्टर. प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टर से लोन लेना अलाउड है. पर इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? Guys, we will try to make this session little interactive, तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर्स भी कर सकते हो. प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है. तो जनरली हम किसी को एडवाइस करते तो हम ये बोल देते हैं कि यार इट इज अलाउड कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले ले. बट जो प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन लेती है उसके पीछे कंडीशंस क्या है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है.
बिकॉज द मोटो कि आज जो हम 30 प्रोफेशनल्स यहाँ ऐड ऑन हुए हैं, हम इस सेशन को लिटिल इंटरेक्टिव बनाए कि हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इट शुड बी क्लियर विद एवरीवन। बिकॉज ये वेबिनार का मोटो ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर जाए। वेबिनार का मोटो ये है कि हम जो भी डिस्कस करें दैट शुड बी क्लियर योर कंसेप्ट, दैट शुड क्लियर योर माइंड। कि एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि हमने 50 चीजें डिस्कस की, बट ये होना चाहिए अगर 2 भी चीज डिस्कस की तो उन 2 चीजों पे हमें प्रॉपर्ली क्लैरिटी आफ्टर दिस वेबिनार है। देन हम जो बोलते हैं कि वेबिनार करवाने का एक मोटो सक्सेसफुल हो जाता है। सो आई हैव रिसीव्ड 2 आंसर्स। वन आंसर इज फ्रॉम हिज ऑन फंड ओनली, दैट शुड नॉट टेक लोन टू गिव लोन टू द कंपनी। सो जब लोन की बात आती है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर के पीछे एक कंडीशन लगा दिया मिनिस्ट्री ने कि इट शुड बी फ्रॉम देयर ओन फंड्स। मतलब डायरेक्टर ने जो लोन दिया है कंपनी का वो उसके ओन फंड्स में से होना चाहिए, वो उसके बोरोड फंड में से नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन यू आर डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट करके पॉइंट्स पे डिस्कस करना है कि ऑडिट्स के लिए हमें किस टाइप से डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं डिस्कस करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करूंगा, बट आई विल डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट। बिकॉज इनकम टैक्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों को मेरे से ज्यादा आता है, डेफिनेटली यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई विल जस्ट फोकस ऑन द मेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट जो ऑडिटर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। सो सेक्शन ने बोला कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है, बट सच कंपनी हैव टू टेक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर कि दिस लोन इज फ्रॉम देयर ओन फंड, नॉट फ्रॉम द बोरोड फंड। अब प्रैक्टिकली जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट के टाइम पर ये हम आई हैव पर्सनली फील मैनी टाइम कि ये तो हम चेक कर लेते हैं कि लोन कहां से लिया है, ओके डायरेक्टर से लिया है, ठीक है, इट इज अलाउड, बट वी हैव टू स्पेसिफिकली चेक ओके डायरेक्टर से लोन लिया है तो डेफिनेटली देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम द डायरेक्टर। बिकॉज अगर डायरेक्टर से लोन लिया है तो वहां पे डिक्लेरेशन होनी ही चाहिए। फर्स्ट चीज। सेकंड, अब लोन फ्रॉम डायरेक्टर ले रहे हैं तो सिर्फ डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, वहां पे हमें सेक्शन के कंप्लायंसेस भी होने चाहिए जो सेक्शन 73 और 179। जैसे कि सेक्शन 179 बोलता है कंपनी कोई भी बोरोइंग करती है एट दैट टाइम कंपनी हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो यू एज अ ऑडिटर जब हम इस ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे कि कंपनी ने लोन लिया है डायरेक्टर से, साल में कितनी बार लिया, जितनी बार भी लिया, इट इज मैंडेटरी कि एवरी टाइम जब भी लोन लिया है एवरी टाइम डायरेक्टर विल गिव अ डिक्लेरेशन। वो एक ओपन एंडेड डिक्लेरेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। मेनी टाइम आई हैव सीन प्रोफेशनली सेइंग कि ओपन एंडेड डिक्लेरेशन ले लेते हैं पूरे साल के लिए। नो, ओपन एंडेड डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, ट्रांजैक्शन वाइज डिक्लेरेशन आपको लेनी पड़ेगी। और हाँ, बोर्ड रेजोल्यूशन आप ओपन एंडेडली पास कर सकते हो। तो दिस शुड बी द कंप्लायंट, दिस शुड बी द डॉक्यूमेंट कि अब आपको इस ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए आपको उनसे एक डॉक्यूमेंट चाहिए, दैट शुड बी डिक्लेरेशन और बोर्ड रेजोल्यूशन। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टर टेक मनी फ्रॉम एचयूएफ एंड गिव टू द कंपनी, कैन ही डू इट? डायरेक्टर ने एचयूएफ से मनी लिया, अब डायरेक्टर एचयूएफ से कैसे लेगा? लोन ही ले सकता है और तो किसी पर्पस से कैसे लेगा? एचयूएफ का पैसा अपने आप अपने पास ले रहा है तो इफ ही विल टेक लोन फ्रॉम द एचयूएफ, तो अगर वो एचयूएफ से लोन लेके कंपनी को लोन दे रहा है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अलाउड, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अलाउड। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन अलाउड है जहां पे उसका ओन फंड हो, वो डिक्लेरेशन दे। ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन उस रिपोर्ट में मेंशन करेगा कि कंपनी ने सेक्शन 73 के कंप्लायंसेस किए हैं। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज क्या है, जब आप ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं, कारो रिपोर्ट बनाते हैं, तो कारो रिपोर्ट में इफ यू हैव पर्सनली सीन आपको सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 के कंप्लायंस पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। जब आप सेक्शन 73 टू 76 के कंप्लायंस पे रिपोर्ट करते हैं तो सेक्शन 73 से 76 जो सेक्शंस है वो लोन्स और डिपॉजिट्स की ही बात करता है। सो उस पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए, उस पॉइंट पे अपनी ऑब्जर्वेशन देने के लिए आपको ये पॉइंट चेक करना जरूरी है कि अगर लोन फ्रॉम डायरेक्टर है तो उसकी डिक्लेरेशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू एवरीवन बिकॉज़ दिस इज द माय वे ऑफ वेबिनार सेमिनार्स कि मैं क्वेश्चंस भी पूछता हूं ताकि ऐसे आप सब भी मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए। Whether a private company can take loan from the members,
If yes, how much loan they can pay? If not, then it is okay. तो we have received the two answers कि क्या डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है या नहीं ले सकती। अब इस पे प्रोविजन पे आते हैं, जैसे पर्सन ने मेंशन किया है कि ले सकते हैं, लिमिट्स पे मैं अभी बाद में आता हूँ। माय व्यू इज आल्सो दैट प्राइवेट कंपनी कैन शेयर होल्डर। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट के लिखा है कि प्राइवेट कंपनी लोन ले सकती है, डायरेक्टर डिपॉजिट की डेफिनेशन में लिखा है, जो चैप्टर 5 है डिपॉजिट का सेक्शन 73 है, उसका रूल में लिखा है कि कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द डायरेक्टर। कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है, कंपनीज एक्ट में लिखा है। तो हमें इस पे प्रॉपर अबाउट दिस प्रोविजन, अगर हम इस प्रोविजन से अवेयर नहीं है तो we will not able to complete the audit, we will not able to give a true and auditor report because कारों में आपको 73 पे स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है। कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा है कि शेयर होल्डर से लोन दे सकता है, सेक्शन या रूल में नहीं लिखा। अब पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ डालो, फर्स्ट सेक्शन टू सेक्शन 460, किसी भी सेक्शन में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा that private company can take loan from the shareholders। ना ही किसी सेक्शन में लिखा है, ना ही किसी रूल में लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा, तो फिर कैसे ले सकती है। देन क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट कंपनी अगर लोन ले रही है तो फिर किस बेस पे वो लोन ले रही है, कि अगर किसी सेक्शन में किसी प्रोविजन में लिखा ही नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को। अभी हमने ऊपर बात की थी, 2 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आई थी, जो 2015 को आई, उसमें प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से लोन ले सकती है। 1 अप्रैल 2014 से लेकर 5 जून 2015 तक कंपनीज एक्ट में लोन देना अलाउड नहीं था। 5 जून 15 था, पर इसके पीछे उन्होंने एक कंडीशन लगाई, अगर प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन लेती है तो इसके पीछे एक कंडीशन है। एनीवन कैन टेल मी दैट कंडीशन, क्या कंडीशन है शेयर होल्डर से लोन लेने के लिए प्राइवेट कंपनी के ऊपर। उन्होंने अब देखिए बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी ये है फ्रॉम द ऑडिट। दिलबाग सर ने मुझे स्पेसिफिकली बोला था, हमें बहुत ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू आज हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से करें। हमें सबसे पॉइंट ये करना है तो कि पहली कंडीशन लो बोलता है जब आपकी एनुअल फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी की जनरल मीटिंग होती है 30 सितंबर की कंपनी जनरल मीटिंग होती है। अब फाइल होना चाहिए 30 दिन में, 7 फाइल होना चाहिए, मतलब 30 अक्टूबर और 29 नवंबर तक फॉर्म फाइल चाहिए। बट कंपनी ने अपना एओसी फॉर एमजीटी 7 फाइल किया जाके ऑन द मंथ ऑफ फरवरी 20th 30 अक्टूबर को जो फॉर्म फाइल होना चाहिए था वो 30 और 30 अक्टूबर से 20 फरवरी के बीच में कंपनी ने शेयर होल्डर लिया है।
whether it is allowed 30 अक्टूबर एओसी 4 फाइल करना था, एओसी 4 नहीं फाइल हुआ। एओसी 4 कंपनी ने फाइल किया 20 फरवरी को, बट दिसंबर में कंपनी ले लिया। whether this loan was allowed or not, what will be your views? 2-3 view I can explain. The loan लेना allowed? No. Second is no. चीज हमने चेक करनी है। We all are the chartered accountant company secretary professionals. We are aware कि हम कितना ये चीज चेक होती है। शेयर होल्डर लोन देखते हैं, इट इज ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नो, अगर शेयर होल्डर लोन है कंपनी की बुक्स में, तो आपको कंप्लायंस चेक करना है कि जिस टाइम वो लोन लिया था, जिस टाइम वो स्पेसिफिक लोन शेयर होल्डर से लिया था, उस टाइम कंपनीज का कोई एनुअल फॉर्म फाइलिंग कर 3 साल बाद करती है, लेकिन उस अगर किसी कंपनी ने ऐसे पीरियड में जब उसके एनुअल फॉर्म चल रहा था, उस पीरियड में अगर लोन लिया शेयर होल्डर से, तो वो लोन नहीं ले सकती है और डिपॉजिट माना जाएगा और डिपॉजिट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दैट लोन इज द कंपनी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अभी हमने पूछा था कितना लोन, वी हैव रिसीव्ड वन आंसर दैट इज 100% ऑफ द सेकंड आंसर ट्वाइस ऑफ उसके बाद रिजर्व है 50,000 के, तो क्या वो 1.5 लाख ले सकती है? नहीं ले सकती। मैं कंपनीज एक्ट के सबसे पहले उसी सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिटर। सबसे ज्यादा डिफॉल्ट इस सेक्शन में होते हैं, सबसे ज्यादा पेनल्टी सेक्शन में लगती है। अगर आप एनसीएलटी के मैटर्स उठाएंगे, बहुत पेनल्टी लगी है। अब आरओसी ने एक नया सिस्टम जो एडजुडिकेशन स्टार्ट कर दिया, वो भी कंपनीज और ऑडिटर्स और ऑफिसर डिफॉल्ट पे लगेगी। सो अभी मैंने क्वेश्चन बोला 1 लाख की कैपिटल है, 50,000 की रिजर्व है, 1 लाख प्लस 50,000 1 लाख, तो क्या ये ले सकती है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, तो प्राइवेट कंपनी तो आज की डेट में 2 रुपए कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो वैसे कंपनी बनाई है, कोई रिजर्व नहीं है, तो फिर मैं 1000 रुपए से ज्यादा शेयर होल्डर से लोन ही नहीं ले सकता। दिस शुड नॉट बी द प्रोविजन। जब मिनिस्ट्री 5 जून और 13 जून को नोटिफिकेशन लेके आई, 5 जून को मिनिस्ट्री ने लिखा टेक लोन फ्रॉम द शेयर होल्डर अप टू 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। बट 13 जून को एक और नोटिफिकेशन जो लेके आई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो नोटिफिकेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत जरूरी है। लेके उसमें कंपनी ने लिखा कि कंपनी शेयर होल्डर से फ्री रिजर्व से ज्यादा लोन ले सकती है। कंपनी शेयर होल्डर से ले सकती है, 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, जो कंपनी शुड नॉट एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ एनी अदर कंपनी। जब कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी किसी दूसरी कंपनी या सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए। इज लेस देन ट्वाइस ऑफ कैपिटल 50 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर। जो आपके ऑलरेडी पे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, वो लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर, उससे नीचे होनी चाहिए। थर्ड, such company has no default in repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting under this section। कंपनी ने कोई बोरोइंग्स की डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए।
पर ये तीन कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, आपको अलाउड है शेयर होल्डर से 100% से ज्यादा लोन लेना भी। तो अब जब आप बैलेंस शीट चेक करते हैं, फाइनेंशियल चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करते हैं, यू हैव टू चेक कि शेयर होल्डर से जो लोन लिया है वो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक है या उससे ज्यादा है। 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल तक है तो सिर्फ ओनली एक ही कंडीशन देखनी है कि कंपनी ने उस टाइम में एनुअल फाइलिंग का कोई रिपोर्ट नहीं किया होना नहीं है। कंडीशन पे देखनी है कि आपकी कंपनी का लोन फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी, कॉर्पोरेट ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से व्हिचएवर इज लोअर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी ने कोई भी बोरोइंग के डिफेक्ट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो, इन दैट केस यू विल अलाउड टू टेक लोन मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के लिए देखो, आपको अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से लोन लिया, फर्स्ट आप चेक करोगे 100% में है या नहीं। 100% में नहीं है तो सबसे पहले तो आप देखोगे किस डेट पे लोन लिए हैं, कब कब लोन लिए हैं, उस डेट पे कंपनी का कोई एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट तो नहीं था। सेकंड, उस डेट पे ऑलरेडी बोरोइंग्स कितनी थी। थर्ड, कंपनी को ये सब्सिडी एसोसिएट तो नहीं है। फोर्थ, कंपनी ने कोई बोरोइंग का डिफॉल्ट तो नहीं कंटिन्यू चल रहा उस दिन। ये सारे डॉक्यूमेंट, इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ेंगे अगर आप अपना रिपोर्ट देना चाहते हो द पॉइंट ऑफ सेक्शन 73 इन कारो, तो आपको ये पॉइंट चेक करने मैंडेटरी है। अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे चैट बॉक्स में, व्हाट इफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर इज सेम पर्सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मेरे पास पर्सन से लोन लिया है, वो पर्सन कंपनी का डायरेक्टर भी है और शेयर होल्डर भी, तो हम उसको किस कैटेगरी में दिखाएंगे। एनीवन वांट टू आंसर ऑन दिस, कि वो लोन फ्रॉम डायरेक्टर माना जाएगा या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर माना जाएगा, कि जब लोन लिया वो पर्सन डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों है, तो वो क्या माना जाएगा, लोन फ्रॉम डायरेक्टर और लोन फ्रॉम शेयर होल्डर। ओके, आई हैव रिसीव्ड टू आंसर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, someone has mentioned as per his declaration, अगर वो डिक्लेरेशन देता है ओन फंड है तो हम डायरेक्टर मानेंगे, डिक्लेरेशन नहीं देता तो वो शेयर होल्डर लोन भी हो सकता है। बिकॉज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक पर्सन है जो कंपनी का डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, वो कंपनी को लोन दे रहा है, उसके पास खुद का पैसा नहीं है, उसने कहीं से बोरो किया, कंपनी को लोन दिया, उनका कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर को लोन दे सकता है। डायरेक्टर को अलाउड नहीं है बोरोड फंड में से देना, शेयर होल्डर को तो अलाउड है बोरोड फंड में से लोन देना। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि एक डायरेक्टर से लोन, एक पर्सन से शेयर होल्डर्स को क्या दिखाएंगे, तो आप इसको दो पार्ट में चेक करोगे। फर्स्ट आप चेक करोगे कि कौन से प्रोविजन कंप्लाई किए हैं, लोन फ्रॉम डायरेक्टर का प्रोसेस फॉलो किया है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर का, दोनों का डिफरेंट प्रोसेस है। अगर हमको लोन लेना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर का प्रोसेस और लोन फ्रॉम शेयर टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग द एंड हम जाके सोचेंगे हमें क्या दिखाना है, नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप साल के लास्ट में जाके सोचो हमें इसको लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखाना है या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर दिखाना है। ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिकॉज ऐसा इसलिए, बिकॉज आपके पास ये ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर नहीं है कि आप ऑडिट करते वक्त देखें कि हमें इसे लोन फ्रॉम शेयर होल्डर दिखाना है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर नहीं। बिकॉज लोन फ्रॉम डायरेक्टर का कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर का डिफरेंट। लाइक लोन फ्रॉम डायरेक्टर लेते हैं तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आपको डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है कि कंपनी ने, सॉरी, कि डिक्लेरेशन लेनी पड़ती है कि डायरेक्टर का ओन फंड है ना। पहले तो आपको ये देखिए बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो, फिर एक जनरल मीटिंग भी होल्ड करनी पड़ेगी और वहां पे एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद एक डीपीटी 3 फाइल होता है,
तो आपको ये सब कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो जनरली जब ये क्वेश्चन आता है किसी का मेरे पास, तो मेरा यही भी होता है कि पूछता है कि सर प्रोसेस था या आपने लोन फ्रॉम डायरेक्ट यूज किया था, बिकॉज जो आप प्रोसेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर रिपोर्ट में इस पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो जो आपने प्रोसेस यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्लोजर दो कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है या ये लोन फ्रॉम डायरेक्टर है। एम आई ऑडिबल? Yes, audible. एम आई ऑडिबल? या ओके सर। Yes, okay, Divesh ji, audible. सो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर और लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो भी क्वेश्चन था कि क्या माना जाएगा, तो किस बेस पे माना जाएगा कि वी हैव टू सी कि हम कौन से वे में फॉलो कर रहे हैं, हमने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है। सो जो प्रोसेस फॉलो किया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई कि वेदर इट इज फ्रॉम लोन फ्रॉम शेयर होल्डर डायरेक्टर। सो जब भी आप कारो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, कारो रिपोर्ट में आपके एक स्पेसिफिक क्लोज होता है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है सेक्शन 73 पे। सेक्शन 73 हमारी बात ही जो करता है वो लोन और डिपॉजिट्स की ही बात करता है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप सेक्शन 73 की बात करते हैं, ये लोन फ्रॉम शेयर होल्डर डायरेक्ट आपने प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई की है, प्रॉपर्ली चेक की है। इसी में एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लोन फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ मेंबर कंपनी के डायरेक्टर है, कर्ता भी कंपनी का डायरेक्टर है, क्या ले सकती है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आप लोगों से आपके क्लाइंट ने पूछा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, क्या कंपनी एचयूएफ से लोन ले सकती है? बिकॉज बहुत सारी जगह ये ट्रांजेक्शन मैंने पर्सनली देखा है कि बहुत लोग पूछते हैं कि एचयूएफ से लोन का क्या करना है। क्या एचयूएफ से, पहला क्वेश्चन तो सिंपल यही आता है कि एचयूएफ से लोन अलाउड है कंपनी एक्ट में या नहीं अलाउड। सेकंड क्वेश्चन आता है एचयूएफ से अलाउड है तो वो क्या डायरेक्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक प्रोपोजल डिस्कस करता हूँ, कंपनीज एक्ट में जहां लिखा है कि आप डायरेक्टर से लोन ले सकते हो, वही मेंशन किया हुआ है कि यू आर अलाउड टू टेक लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर आल्सो, कि डायरेक्टर के रिलेटिव से भी आप लोन ले सकते हो। सॉरी देयर वाज, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एचयूएफ से लोन। तो एचयूएफ से लोन लेना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अलाउड नहीं है। एचयूएफ से लोन लेना चाहती है तो बस एक ही कंडीशन में अलाउड है, जब एचयूएफ आपकी शेयर होल्डर हो। अगर एचयूएफ है उस केस में तो ले सकते हो, अदर केसेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को एचयूएफ से लोन नहीं है किसी भी एंगल से। सो दिस इज द पॉइंट कि जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ऑडिट के टाइम हमें क्या चेक करना है। तो ये सब डिपॉजिट और लोन से रिलेटेड पे डिस्कस कर रहे हैं। Someone is elaborate on loan given by holding company to subsidiary company. Okay, मैं टेकअप कर लेता हूँ इस क्वेश्चन, बिकॉज ये भी आपके डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है ऑडिट के टाइम। पहली चीज,
एक कंपनी को दूसरी कंपनी को, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लोन देना तो कंपनीज एक्ट में कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जो हम डिपॉजिट के सेक्शन की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जो कंपनी लेगी, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंटर डायरेक्टर अलाउड है, लोन फ्रॉम रिलेटिव अलाउड है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर अलाउड है। ऐसे ही इंटर, अगर सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो आप सेक्शन 73 में अलाउड है कि आप होल्डिंग हो या नहीं हो, किसी भी दूसरी कंपनी से आपको लोन लेना अलाउड है। अब आता हूं फ्रॉम द 85, आपकी क्वेश्चन अभी पूछा तो मैं भी, आप जब कारो रिपोर्ट करते हैं ना, अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था सेक्शन 73 पे आप स्पेसिफिक रिपोर्ट करते हो, ऐसे ही सेक्शन है 185। आप सेक्शन 185 डायरेक्टर्स और एंटिटीज इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, ये पॉइंट वहां फॉल करता है। सेक्शन 185 बोलता है कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, डायरेक्टर रिलेटिव्स को नहीं दे सकती, ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर या उसके रिलेटिव पार्टनर नहीं दे सकती। फिर 185 बोलता है एक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकती है जहां डायरेक्टर कॉमन है, बट उसके लिए दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि जो कंपनी लोन देगी वो आएगी कि सिर्फ अपने बिजनेस करेगी, अपनी सब्सिडी पर सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एक जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कॉल करने पर देन एक जनरल मीटिंग लोन दे रहे हो, सब्सिडी अपने बिजनेस पर्पस के और लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि सब्सिडी ऑलरेडी कंपनी से दूसरी कंपनी कंडीशन में ऐड ऑन करूंगा। अब चाहे होल्डिंग कंपनी सब्सिडी को दे रही है या एक कंपनी किसी दूसरी से, पहले आप बताया कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंडीशन डाल के देना अलाउड है, बट एक कंपनी किसी देती है, बहुत करिएगा, किसी को इंटरेस्ट चार्ज करना मैंडेटरी है। तो वो सब्सिडी नहीं है, डायरेक्टर कॉमन नहीं है, तो आपको 185 का तो कोई कंप्लायंस नहीं करना है। देने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और बोर्ड रेजोल्यूशन यूनानिमस कंसेंट ऑफ डायरेक्टर से होना चाहिए। 186 बोलता है जब भी आप लोन देते कि बोर्ड मिनट्स में दिखाओ कितने डायरेक्टर प्रेजेंट थे अंदर दिया है, किसी को भी चाहे कंपनी को दिया है,
इंटरेस्ट चार्ज किया है या नहीं किया है, उनसे इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट नॉन कंप्लाई करना पड़ेगा। एसबीआई का प्रैक्टिकली जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस रेट के अकॉर्डिंग चार्ज, ऐसा नहीं कि मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% आपने दिया है 8% में, इट इज नॉट अलाउड। तो 3 ईयर 5 ईयर 10 चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एज ए ऑडिटर। तो एज ए ऑडिटर अगर आपकी कंपनी ने किसी को भी लोन दिया है, चाहे डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को, दूसरी कंपनी को, आपने कंपनी से बोर्ड रेजोल्यूशन मांगना ही मांगना है। स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, आपने इंटरेस्ट के डॉक्यूमेंट मांगने और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक करने के कितने परसेंट पे दिया, वो अकॉर्डिंग टू द 3 ईयर 10 ईयर यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट था या नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस आपको चेक करना ही पड़ेगा। उसके अलावा 186 बोलता है अगर आपने किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन दिया हुआ है और आप आगे किसी को लोन दे रहे हो, तो अगर आपने उस इंस्टीट्यूशन की, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की किया है तो ये लोन देने से पहले उनकी अप्रूवल भी पड़ेगी। तो आप चेक करो कि अगर आपकी कंपनी आगे लोन देती है तो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो चेक करो कि उनकी अप्रूवल आई है या नहीं आई है। अगर उनकी आज तक ऊपर गई है तो चलो, बट कभी भी सिंगल में डिफॉल्ट हुआ उनकी अप्रूवल की जरूरत होगी। तो ये सब चेक करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप ऑडिटर रिपोर्ट साइन कर दोगे ना, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। जनरली मैं वेबिनार्स में और सेमिनार्स में एक चीज बोलता हूँ, जो कॉर्पोरेट अफेयर है ना, उनको कंपनी से ज्यादा प्रोफेशनल से प्यार है। जो पहला लव लेटर आएगा ना पेनल्टीज का, वो कंपनी को ना जाकर वो ऑडिटर्स के पास आएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम कंपनीज की ऑडिट करते हैं। ऑडिट करते वक्त हमको बहुत केयरफुल रहना। ऑडिट करते वक्त हमें ये केयरफुल रहना है कि अगर हमने लोन लिया है तो सेक्शन 73 वाले जो भी डायरेक्ट रिलेटिव्स में बात की वो कंप्लायंस चेक करनी है। जनरल रेजोल्यूशन ये सब हम चेक करते हैं, ये सब हमें चेक। Sorry for the interruption for just 1 second. बात कर रहे हैं तो हमें जब 186 को लोन देते हैं तो इन कंप्लायंसेस को हमें स्पेसिफिकली कंसीडर करना है, इन्हें हमें स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। किसी का कोई क्वेश्चन इन पर, एनीवन वांट एनी क्वेश्चन? जब हम लोन देने की बात करते हैं तो ये 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 73 हमने डिस्कस किया, सेक्शन 185 हमने डिस्कस किया, सेक्शन 186 हमने डिस्कस। ये पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर के साथ, ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर के साथ मेंशन करना पड़ेगा अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में आपको स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर के साथ इनपर रिपोर्टिंग करनी है। तो वी हैव टू सी कि हम इन सेक्शंस को प्रॉपर्ली कंप्लाई करें। इन सेक्शन को प्रॉपर्ली चेक करेंगे तभी हम रिपोर्ट प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज इट मे बी हैपन कि हम प्रॉपर्ली ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते वक्त कुछ डिस्क्रिपेंसी हमारी वहां पर रह गई है। तो दिस थिंग वी ऑल हैव टू चेक, दिस थिंग वी ऑल हैव टू टेक केयर द ऑडिट्स। ओके, समवन इन फॉरेन, अच्छा सब्सिडरी फॉरेन कंपनी है तो पहली चीज मुझे लोन देना अलाउड है। देखो 186 कहीं भी नहीं रोकता कि सब्सिडरी अगर फॉरेन है तो लोन दे सकते हो, नहीं आप दे सकते हो, बट आपको साथ में FEMA के कंप्लायंसेस भी चेक करने पड़ेंगे। अगर सब्सिडरी आपकी फॉरेन कंपनी है तो आपको FEMA के कंप्लायंसेस भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो
तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि फेमा के क्या क्या कंप्लायंसेस आपको करने हैं। एनी क्वेश्चन एनीवन वांट टू आस्क ऑन दिस? दो पॉइंट्स हमारे जिन पे अभी सर जो आपने रिकम का होल्डिंग कंपनी होल्डिंग को लोन दे सकती है। तो सब्सिडी कंपनी जब होल्डिंग की बात करते हैं देने की, तो सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सेम वही पॉइंट कि होल्डिंग कंपनी अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो हमें 185 पास करना पड़ेगा कि बिजनेस पर्पस से यूज करें, और 186 के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। हमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई डिफॉल्ट कमी की, और उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी ऐसे लोन के ट्रांजेक्शन होंगे जो देने की बात कर रहा हूँ, कोई भी लोन जो कंपनी दे रही है इसके रिगार्डिंग सेक्शन 189 में एक रजिस्टर बनता है। 186 में रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन्वेस्टमेंट, वो रजिस्टर भी कंपनी को बनाना मैंडेटरी है। तो आप लोगों को जब ऐसे ट्रांजेक्शन जब आप चेक करो, आप किसी कंपनी का ऑडिटर हो, उस कंपनी ने आगे लोन दिया है, तो आपको सिर्फ इतना ही रेजोल्यूशन है या नहीं है, इंटरेस्ट चार्ज किया है नहीं, आपको देखना है कि रजिस्टर्स में एंट्री हुई है या नहीं हुई है। रजिस्टर्स में नहीं हुई है, नॉन कंप्लायंस है, और आपको इसको ऑडिटर रिपोर्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली ऑडिट, you have to focus on these points. ये ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्शन है, सेक्शन 73 और 185 एंड 186। इवन आई वुड लाइक टू से कि ये तीनों ऐसे सेक्शन हैं जिन पे एक पूरा का पूरा अलग अलग वेबिनार हो सकते हैं, एक एक डेढ़ घंटे के। अभी हमने सेक्शन 73 जो डिपॉजिट और लोन्स की बात की है, 2 या 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। दे आर द लॉट ऑफ पॉइंट जो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिटर। और सेम जो हमने लोन देने की बात की है 185 186, we have just discussed the some point, there are a lot of point which we have to check। तो जब भी 185 186 की बात होती है या सेक्शन 73 की, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटीज आ जाती है ऑन द ऑडिटर्स, बिकॉज ये तीन सेक्शन है जहां पे आई हैव पर्सनली सीन एज अ कंपनी सेक्रेटरी, मैं भी सेक्रेटरी ऑडिट्स भी करता हूं, काफी सारे और कंप्लायंसेस, तो पर्सनली आई हैव सीन कि इन तीन सेक्शन में कंपनीज बहुत डिफॉल्ट करती है। डिफॉल्ट लाइक कि हमें जहां से लोन नहीं लेना था, अलाउड नहीं था, वहां से हमने लोन ले लिया, और जहां लोन देना अलाउड तो था बट इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया या कम इंटरेस्ट चार्ज किया, तो दिस ऑल शैल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिटर। तो ये सब चीजें नॉन कंप्लायंस में आपकी कंसीडर की जाएगी। होप एटलीस्ट बाय दिस वेबिनार में दो पॉइंट्स को आप सभी के क्लियर कर पाया हूं। एक क्वेश्चन है दीपक कक्कड़ जी का, इफ अ कंपनी हैज टेकन अ लोन फ्रॉम समवन बाय मिस्टेक which qualify as deposit, how to report for that is not to come as auditor। First thing, जब भी सब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, दिस इज द सेकंड पॉइंट कि कंपनी और ऑडिटर के लिए हार्मफुल है या नहीं है। पहला पॉइंट हमारा होता है कि क्या वो लॉ में लॉ के कंप्लायंस किए या नहीं किए हैं। जैसा कि आपने लिखा कि कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, ना ही शेयर होल्डर है ना ही रिलेटिव है, लोन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा है सेक्शन 73, सेक्शन 73 में अलाउ ही नहीं करता उनसे लोन लेना। सेक्शन 73 हमें उनसे लोन लेना अलाउ ही नहीं करता, अलाउ ही नहीं करता, ये नॉन कंप्लायंस है। कितना हार्मफुल होगा ये बात की बात है, बट आपको अपनी कारो रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ेगी, आपको डीपीटी 3 में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट है कंपनी का, आपको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया सेक्शन 73 का, डायरेक्टर्स को डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि उन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है डिपॉजिट के सेक्शन का। इस नॉन कंप्लायंस और जो इसके रिगार्डिंग काफी हैवी पेनल्टी द 2 टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ द लोन इज द मिनिमम पेनल्टी व्हिच पे अगर आरओसी से नोटिस आ जाता है तो। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडिटर आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको ऐसी सब चीजों को
हार्मफुल तो हम नहीं रिपोर्ट करेंगे. यू हैव टू रिपोर्ट ऑन द 23. दे आर नॉट सेइंग कि आप ये एनालाइज करो पहले कि हार्मफुल है तभी रिपोर्ट करो. नहीं, दे आर सेइंग कि आपको कंप्लायंस रिपोर्ट करना है कि सेक्शन 73 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है. अगर नॉन कंप्लायंस है तो यू हैव टू रिपोर्ट. यू हैव टू रिपोर्ट. जब आरओसी पेनल्टी लगाएगा दे विल कंसीडर इट इज हाउ मच इज हार्मफुल, उसके अकॉर्डिंग कितनी पेनल्टी लगनी चाहिए. बट एज अ ऑडिटर यू हैव टू रिपोर्ट इट. बिकॉज प्राइवेट कंपनी लिमिटेड सोर्सेज से ही लोन ले सकती है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से ले सकती है, वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन. रिलेटिव से ले सकती है, शेयर होल्डर से ले सकती है सब्जेक्ट टू सो मेनी कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की. किसी दूसरी कंपनी से ले सकती है, बट देखना पड़ेगा कि कोई डायरेक्टर तो कॉमन नहीं है, प्रॉपर इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है या नहीं है. गवर्नमेंट से ले सकती है. और कौन बचा? आउटसाइडर से अलाउड नहीं है. एलएलपी से प्राइवेट कंपनी लोन ले सकती है या नहीं? आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू एवरीवन, whether a private company can take loan from the limited liability partnership जिसमें सारे हमारे डायरेक्टर पार्टनर है. एक एलएलपी जिसमें हमारे कंपनी के सारे डायरेक्टर है, क्या उस एलएलपी से कंपनी लोन ले सकती है? I have received 3 answer, that is no. Exactly. कंपनी एलएलपी से भी लोन नहीं ले सकती. यस, कंपनी को दूसरी कंपनी से लोन लेना जरूर अलाउड है, बट कंपनी को एलएलपी से लोन लेना अलाउड. तो दूसरी कंपनी से लोन लेना चाहो तो ले लो, बट एलएलपी से लोन नहीं ले सकते. एक कंडीशन में एलएलपी से ले सकते हो, अगर एलएलपी आपकी शेयर होल्डर है तो बच्चा कौन? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ज्यादा सोर्सेज नहीं है लोन लेने के. तो ऑडिटर्स को बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ता है 2 पॉइंट्स पे, लोन लेने वाली बात पे, लोन देने और कंपनीज एक्ट के एज अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रैक्टिसिंग. ये 2 कंपनीज एक्ट के ऐसे प्रोविजन है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं कंपनीज को. बिकॉज किसी भी कंपनी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? पैसा. वो कहां से आएगा? लोन से. लोन कहां से ले सकता है? डिपेंड अपॉन लोन. किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड पूछ सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन. आई हैव डिस्कस द पॉइंट रिलेटिंग टू द ऑडिट. ऑडिट के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किए. नाउ जो ईयरली कंप्लायंसेस है आई विल डिस्कस दैट. उसके बाद किसी की जो भी क्वेरीज होगी वी विल टेक अप ऑल द क्वेरीज. So as you can see on the screen, annual compliance of private company. The compliance of the private company I have divided into some parts. Sorry, I'm just sharing the screen again. Compliance is present. Private company. अब फाइनेंशियल ईयर हमें पता है कि होता है, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो क्या कंडीशन किस सिचुएशन में चेंज कर सकती है? अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च को चेंज करके कोई और पीरियड रखना चाहती है तो किस कंडीशंस में प्राइवेट कंपनी अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकती है? कैसे कौन सी सिचुएशंस है जब प्राइवेट कंपनीज को अलाउड है कि वो अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर ले? जनरली तो नहीं है. जैसे पहले 90 कोई चेंज कर लेती थी, बट आज की डेट में ऐसा तो अलाउड नहीं है कि कोई भी चेंज करना चाहे तो आप चेंज नहीं कर सकते. यू हैव अदरवाइज नहीं होगा. यही रीजन है कि आज के टाइम इंडिया में 99% कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, और ऐसी बहुत कम 1% ऐसी कंपनीज होगी जिनका ईयर अदर देन अप्रैल टू मार्च है. कंपनीज एक्ट बोलता है सिर्फ 3 ही सिचुएशन में आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो. जब आपकी होल्डिंग कंपनी एक फॉरेन कंपनी है,
नॉट ओनली इन द कंसोलिडेशन सर, जब आपकी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी हो फॉरेन हो तब भी आपको होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेट नहीं करने पड़ेंगे। सो जब आपकी होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी हो उस केस में आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। जब आपकी सब्सिडी कंपनी फॉरेन कंपनी हो तब आप अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो, और जब आपकी एसोसिएट कंपनी फॉरेन कंपनी हो चेंज कर सकते हो। These are the three conditions under company law. चेंज नहीं कर सकते। So these are the only three situations. तो फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, कुछ और है, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होती है या नहीं। फॉलो होती है तो क्या उनके पास रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर है या नहीं टू चेंज देयर फाइनेंशियल ईयर। एज अ ऑडिटर ये चीजें हमें चेक करनी है। प्रैक्टिकली आई हैव सीन कि हम इनको कंसर्न नहीं देते हैं, हम बड़ी चीजों को कंसर्न देते हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े नॉन कंप्लायंस क्रिएट कर देती है। तो यू हैव टू चेक नेक्स्ट टाइम किसी कंपनी को ऑडिट करते हो उसका फाइनेंशियल ईयर डिफरेंट है, आपको चेक करना है फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो क्या आरडी की अप्रूवल ली है या नहीं। अब एक और चीज आती है, जनरली आप जब एक कंपनी की ऑडिट करते हो तो आप कंपनी का नाम देते हो कंपनी के मास्टर डाटा में कि कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो उस पे सारे प्राइवेट कंपनी के कंप्लायंस लगेंगे। अगर इसमें मैं ये बोलूं क्या ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंस लगे। मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिट लेने से और हमने ऑडिट ली थी एज अ समझ के प्राइवेट कंपनी पर उस पे कंप्लायंस लग रहे हैं पब्लिक कंपनी के, कैसा हो सकता है कि प्राइवेट बिकॉज हमारे वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर ऐसा हो गया कि हमारी प्राइवेट कंपनी पे पब्लिक कंपनीज के सारे कंप्लायंस लग रहे हैं। तो whether it is possible कि प्राइवेट कंपनीज पे पब्लिक कंपनीज के कंप्लायंस लग रहे हो। someone mentioned yes सर किस कंडीशन में प्राइवेट कंपनी पे पब्लिक कंपनीज के कंप्लायंसेस लग सकते हैं। there is a concept under companies act deemed public company, yes sir, yes rightly mentioned deemed public company, but पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बोलती है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड पब्लिक मानी जाएगी, और पब्लिक कंपनी पे जितने कंप्लायंस लगते हैं वो सारे उस प्राइवेट पे लग जाएंगे। तो लेते हो उनका साइड कि उससे पब्लिक वाले तो कोई नहीं है ना। So these things we have to focus. अब आते हैं कंप्लायंसेस पे। तो जैसा मैंने अभी बोला मोस्टली फाइनेंशियल ईयर होते हैं अप्रैल टू मार्च, तो मैंने अपने कंप्लायंस चेकलिस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 4 पार्ट में अप्रैल टू अक्टूबर तक डिवाइड किया है। फर्स्ट कंप्लायंस सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 दैट इज एमबीपी 1 का। एमबीपी 1 क्या है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी of the board of directors in each financial year shall disclose his interest every company फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट मीटिंग में अपना इंटरेस्ट डिस्क्राइब करेगा। तो ये एज ऑडिटर अब आपको कंप्लायंस चेक करना है, तो जब भी आप ऑडिट करते हैं तो यू हैव टू आस्क कंपनी से, आपको पूछना है कि एमबीपी 1 है या नहीं है। यू हैव टू चेक द एमबीपी 1 और एमबीपी 1 इज वेरी यूजफुल टू यू। एमबीपी 1 आपके क्या काम का है? ठीक है, एक तो 84 का कंप्लायंस चेक करने के लिए, क्या किसी और पर्पस से भी एमबीपी 1 आप लोगों के काम का है? ऑडिट के काम का है, किसी और पर्पस से भी आप यूज कर सकते हैं। मैं बताता हूं, आप लोग ये स्टेटमेंट बनाते हैं एवरी ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑडिटिंग द शेड्यूल ऑफ द
डिटेल रेटेड की डिटेल कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी एमबीपी 1, क्योंकि कहाँ कहाँ उसका इंटरेस्ट है, कौन कौन उसके रिलेटिव है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, वो पूरी लिस्ट उसको देनी पड़ती है। तो अगर 185 चेक करना है, 185 बोलता है कंपनी डायरेक्टर, भी हमने डिस्कस किया था 185, कंपनी डायरेक्टर नहीं दे सकती, ऐसी फर्म जिसमें कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है उसको लोन नहीं दे सकती। चलेगा कि वो जिसको लोन दिया है, जिस फर्म को लोन दिया है, जिस इंडिविजुअल को लोन दिया है, उसका डायरेक्टर से कोई रिलेशन है या नहीं है, वो आपको पता है एमबीपी 1 से चलेगा। तो जब आप 185 एनालाइज करोगे ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी ने जो लोन दिया है उसको अलाउड भी था या नहीं, तब आपको एमबीपी 1, बिकॉज आपको नहीं पता डायरेक्टर के रिलेटिव चलेगा, आपको नहीं पता कौन सी फर्म है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्ट, वो कि इन पर्सन में से किसी के साथ तो कोई नहीं हुआ है ना 180 दिया है कि डायरेक्टर, हमें पता है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट का बोलता है 3 सालों नहीं की तो दे विल बी कंसिडर्ड डिस्क्वालीफाइड। सबसे पहली चीज जो मैं आज दूर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आती है मेरे पास कि सर कंपनी ने 5 सालों से फाइलिंग तो नहीं किया है बट डायरेक्टर के डिम का स्टेटस एक्टिव है, तो मतलब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ, यही माय आंसर विल बी नो। जब एज अ ऑडिटर आप ऑडिट करते हो तो आपको देखना पड़ता है डायरेक्टर, जो उस कंपनी के डायरेक्टर है किस किस कंपनी में डायरेक्टर है और कब से वो डायरेक्टर है, उन सब की एनुअल फाइलिंग का क्या स्टेटस है। जो आप अगर उनमें से एक भी उनमें से एक ऐसी कंपनी है, मैटर की डायरेक्टर के दिन का क्या स्टेटस है, लीगल कंसीडर एज डिस्क्वालीफाइड, कंपनी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। और अगर वो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में आप लोगों को पता होगा, ये डिस्क्लोजर आप हर साल देते हो, फिर कोई भी डायरेक्टर ओके पहली चीज से एवरी ईयर डिक्लेरेशन लो ईयर 8 में क्या नॉट डिस्क्वालीफाइड बोलो, उन्होंने क्या 3 सालों से कोई भी ऐसी फाइलिंग नहीं की है, एक भी कंडीशन ऐसी हो और आप डॉक्यूमेंट चेक तो सेक्शंस पता हो और ऑडिट को ऑडिट के लिए ये बताओ पॉइंट्स हम डिस्कस एक की कितनी इंपॉर्टेंस है, also सेक्शन 405 में एमएसएमई 1 कंपनी
MSME vendor at the end पर फाइल करना पड़ता है। अक्टूबर टू मार्च के लिए 30 अप्रैल को, अप्रैल टू सितंबर के लिए 30 अक्टूबर को। अब ये फॉर्म ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, एंड भी इंपॉर्टेंट है क्यों? एमएसएमई एक्ट 2006 जो 2006 में आया था, 15 साल हो गए। वहां एक सेक्शन आई थिंक 17 है या 18 है, वो बोलता है अगर और कंपनी को उस पेमेंट विद इंटरेस्ट करनी पड़ेगी और ऑडिटर को इसके ऊपर स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट अमाउंट देनी है, इंटरेस्ट एक्रूड देना है, इंटरेस्ट पेड देना है, इंटरेस्ट जितना एक्रूड हो चुका है वो सब डिटेल्स देनी है। मैंने लास्ट ईयर्स में, लास्ट 15 सालों की बैलेंस शीट बहुत सारी कंपनीज की चेक की, तो जनरली एक कॉमन रिपोर्टिंग चलती है, ऑडिटर से कॉमन रिपोर्टिंग के लिए तो जो भी है सभी टोटल देखिए कि एज पर योर नॉलेज कंपनी ने एमएसएमई जो फॉर्म है ये फाइल उसी कंपनी को करना है जिस कंपनी ने ऑडिटर ने फॉर्म में कंपनी ने एक वेंडर को पेमेंट करने में 45 दिन से ज्यादा का टाइम ले लिया। 45 दिन से 46वां दिन होते ही ये डिफॉल्ट हो गया, अब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने सभी एमएसएमई वेंडर को टाइमली पेमेंट किया है तो ये फॉर्म ही नहीं फाइल होगा। ये फॉर्म केस में फाइल होगा जब कंपनी ने एमएसएमई वेंडर की पेमेंट करी है 45 डेज के बाद। तो मतलब जब आप कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, आप कंपनी की सारी कंप्लायंस चेक करोगे, कंपनी की कंपनी ने एमएसएमई वेंडर की पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया। अगर एमएसएमई वेंडर की पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होता तो कंपनी को एमएसएमई वन फाइल नहीं करना पड़ता। एमएसएमई क्या है मतलब वेंडर की पेमेंट में, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कोई डिफॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। ये था तीसरा कंप्लायंस साल का। कंप्लायंस फॉर ईयरली रिटर्न है, सेक्शन 78 में जाते हैं डीपीटी 3। Company is required to file this form every year on or before 30th June in respect of return of deposit and particular not considered as deposit. ये पॉइंट, ये डीपीटी 3 ना ऑडिटर्स के लिए एक बर्डन भी है और ऑडिटर के लिए ऑडिट करते वक्त एक बहुत पॉइंट भी है। बर्डन क्यों है? बैलेंस शीट 30 सितंबर तक, बट डीपीटी ऑडिटेड से यहाँ मतलब है कि सम पर्सन विल से कि हमने ऑडिट नहीं किया कैसे दें। तो यहाँ पे ये है प्रोविजन की है ना, वही अमाउंट आपकी फाइनेंशियल्स में होनी चाहिए और इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं जाएगा। ऑडिटर से सर्टिफिकेट तो डीपीटी 3 में सिर्फ तब जाएगा जब कोई डिपॉजिट है या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो डीपीटी 3 आपको इसके लिए 30 जून तक आपको अपना लोन और एडवांसेस का डाटा फाइनलाइज करना है और उसके बेस पे आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में डाटा वेरी someone has mentioned a question, if a trader taking MSME but he is not actually service provider, sir अगर उसके पास MSME का रजिस्ट्रेशन है वेंडर है तो आप
September, this is the month of July. Financial statement prepare करना पड़ता है. Preparation of annual financial statement and the auditor report shall be attached to every financial statement. Financial statement में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट बनती है, P&L बनता है, कैश फ्लो बनता है. तो कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी नहीं है. बनाने के प्रोविजन से सी कंपनीज का एमएसएफ बहुत सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट फर्स्ट कैश फ्लो नहीं बनाना. इस एक्ट में स्मॉल एग्जम्पशन दो को छोड़ के हर स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं. अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है या ओपीसी है, उस केस में तो आपकी डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी एज पर सेक्शन 134 रूल 8A. जब स्मॉल 1% कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगी रूल 8A के अकॉर्डिंग बनाएगी. जो डिस्क्लोजर रूल 8 लिखा है वो तो इसकी डायरेक्टर में जाएगा, अदर डिस्क्लोजर आपकी स्मॉल एंड ओपीसी के डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं जाएंगे. आप डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हो फॉर द कंपनीज अदर देन स्मॉल एंड ओपीसी, उस केस में आपको डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 104 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 8. उसके केस पे आपको अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी. सबसे अच्छी चीज क्या है लास्ट ईयर और इस ईयर भी कोविड के कारण मिनिस्ट्री ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि वैसे तो कंपनीज एक्ट में एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, बट 2021 31 मार्च 2021 के अगर आप चाहो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते. नोटिस इशू करना पड़ेगा. नोटिस जो है जनरल मीटिंग का 3 लोगों को मैंडेटरी है, डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को, ऑडिटर्स को. अगर आपके पास एज अ ऑडिटर जनरल मीटिंग नोटिस नहीं आता है तो यू हैव टू से दिस इज अ नॉन एक्शन. Because Companies Act specifically section 101 और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 बोलता है इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस ऑडिटर्स को जरूर देंगे. सर्कुलेशन एंड इस क्वार्टर में ग्लास कंप्लायंस होता है फाइलिंग ऑफ DIR3 के MIC सिंगल फॉर्म. DIR3 KYC is the KYC of the directors. So every person who is having deal, that person file every year is 30 सितंबर. अगर 30 सितंबर तक फाइल नहीं करते उसके बाद नेक्स्ट डे से 5000 की एडिशनल चार्ज होती है. 30 सितंबर तक फाइल कर देते हैं तो कोई भी फीस नहीं पे करती. अब कंप्लायंस फॉर द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, जब हमारे फाइनेंशियल्स बन गए, डायरेक्टर रिपोर्ट बन गई, जनरल मीटिंग हो गई, अक्टूबर टू दिसंबर में फर्स्ट आता है फाइलिंग ऑफ AOC फॉर्म. AOC फॉर 30 डेज ऑफ एंड फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को फाइल करना होता है और AOC फॉर्म में कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच करना होता है. देन एंटिटी 7 अक्टूबर सितंबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर लास्ट क्वार्टर करना मैंडेटरी नहीं है. As per this section 73 and section meeting of in such a manner कैलेंडर मीटिंग होना मैंडेटरी है. और मैक्सिमम क्या है कि आज की डेट में कंपनीज एक्ट में क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग करने का कोई कंसेप्ट नहीं है. कंपनीज को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो
सेक्शन 88 एंड अदर सेक्शंस, कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स है जो एवरी कंपनी लास्ट कंप्लायंस, एज वी ऑल आर अवेयर, ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। कंपनीज एक्ट में सिर्फ ऐसी 2 सिचुएशन है जब ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट होगा, उसके अलावा किसी भी सिचुएशन में ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है। सिचुएशन नंबर 1, जब नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और आप फर्स्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑडिटर आपका फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड लेकर एजीएम तक के लिए अपॉइंट। जब कोई ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन कर देता है या रिमूवल हो जाता है या डिस्पल, तो कैजुअल वैकेंसी होगा वो अप टू 8। ये 2 ऐसी सिचुएशन है कंप्लायंसेस है कंपनीज एक्ट के। प्राइवेट कंपनी चाहे वर्क, अभी हमने 2 सिचुएशन डिस्कस की, एक तो जो फर्स्ट ऑडिटर है कैजुअल वैकेंसी, और किसी सिचुएशन में क्या ऑडिटर से कम हो सकता है, अगर इन अलावा किसी भी सिचुएशन में ऑडिटर क्या पॉइंट हो सकता है। You all are the chartered accountant. Just one question. क्या कंपनी इस क्वेश्चन क्या जनरली कंपनी ऑडिटर 2 साल 3 साल के लिए, नॉट फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए, हम सिर्फ 2 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। कंपनी के पास जो आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉर रिलेटिंग टू द स्टैट्यूटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कंपनी ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट कर, 5 साल से कम के लिए अपॉइंट कर सकती है, 1 साल? All 30% to answer this question because ये तो आपसे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। नॉट ओनली अ सिंगल पर्सन बट ऑल द, क्या ऑडिटर को 5 साल से कम कर सकती है? कौन इज आंसरिंग? साल के लिए अपॉइंट होगा या साल के लिए, या 3 के लिए, या 4 के अपॉइंट हो। ये आपकी पहली एजीएम है तो 6 तक, ये आपकी 5वीं एजीएम है तो 11। ऑडिटर शैल बी, ये 5वीं एजीएम है तो 10 तक ऑडिटर 2 के लिए तो 3 के लिए आप एक साल होते हो तो it is a wrong, it is a non-compliance होता company law. One last point I am going to discuss for today, then if आपकी कोई क्वेश्चन है तो we will take up. स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 1 अप्रैल 2021 से चेंज हो गई है। पहले थी 31 मार्च तक थी, a company having paid up share capital up to 50 lakh, turnover up to 2 crore, it's a small company. 1 अप्रैल से हो गई कंपनी having paid up share capital up to 2 crore, turnover up to 20 crore, it's a small company. अब आप लोग जब ऑडिट करोगे बनती है
बहुत से कंप्लायंस होते हैं जो स्मॉल पे नहीं लेते, लाइक कैश फ्लो नहीं चाहिए, बट अदर कंपनी अदर देन स्मॉल को कैश फ्लो चाहिए। तो जब आप ऑडिट करेंगे करते हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर, बैलेंस शीट डायरेक्टर रिपोर्ट अगस्त में साइन करते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो आप ओल्ड डेफिनेशन कंसीडर करेंगे या न्यू डेफिनेशन? जब इस साल आप ऑडिट करेंगे, जब आप बैलेंस शीट साइन करेंगे, अगस्त में साइन करेंगे, अगस्त तक डेफिनेटली न्यू, तो आप उसको स्मॉल कंपनी कंसीडर करेंगे या नॉन स्मॉल कंपनी कंसीडर करेंगे? One person mentioned non-small company. Anyone have any other view? Only one person just said company. किसी और का कोई व्यू इसको स्मॉल कंपनी मानेगा या नॉन स्मॉल कंपनी मानेगा? व्यू आया कि दिस विल बी कंसीडर एज अ नॉन स्मॉल कंपनी। सो इस साल की ऑडिट के लिए आपको चेक करना है ओल्ड डेफिनेशन। अगर 31 मार्च को आप स्मॉल थे तो आप स्मॉल हो, 31 मार्च 31 मार्च को 1 अप्रैल को नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप स्मॉल हो गए, बट जो एनुअल फाइलिंग इस साल की होगी वो 31 मार्च को बेस देखी होगी, नॉन स्मॉल कंपनी। ओल्ड डेफिनेशन हमें कंसीडर करनी है फॉर द पर्पस ऑफ द एनुअल फाइलिंग। 31 मार्च को ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटस था, वो स्टेटस इस साल की एनुअल फाइलिंग में आपको कंसीडर करना है। पॉइंट्स फॉर टुडेस प्रेजेंटेशन, इसमें हमने डिस्कस किए, हमने कुछ ऐसे पॉइंट ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट स्मॉल कंपनी Moji, I have discussed all the points. अगर किसी का कोई point है तो you can ask the member to raise their questions. Thank you, Diveshji, for such an elaborative discussion. Now, I would request all the members to please ask the queries related to uh, companies' law compliance during the audit, ROC compliances, or the related query. One of the PPT will be received. I will request Yeah, Diveshji I to will please share. share with the answer. Content will be shared by Diveshji. That is not the issue. If any member have any query related to loans or auditor appointment, uh, or any other section related to company's audit or ROC compliance, then I would request you to please unmute yourself and ask the query. कुछ फाइल्स नहीं हुए तो मैंडेट पीपीटी 3 फाइल नहीं हुए। हाँ जी, और आगे 20 साल का तो चलो कंप्लाइंस कर दिया है। अगर हम टाइम पहले मिनिस्ट्री ने कमिटी डिपार्टमेंट ही बनाया, उस केस में क्या है चेक कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आज के टाइम में रिस्की हो गया पेनल्टी बोनस। हम ये भी बहुत लगा सकते हैं डेफिनेटली, जिस देखा नहीं की भी ट्रस्ट फ्री लोन
मेरे से ज्यादा इस चीज का नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है। inform जी एक मेरा क्वेश्चन है you actually asked for the band form. So band form is a completely a different concept in itself. ये वो अपने आप में complete different concept है. So I can request Mohit ji कि सर कभी आप एक separate session for the band for the 1.5 hour, 1 hour. Then we can discuss it in completely. Because there are a lot of band form to understand करने के लिए भी required a lot of time. तेरे कोई कंपनी में जैसे डायरेक्टर्स नहीं है कभी भी 5 साल से 10 साल से, उसका भी केवाईसी कंप्लीट करना मैंडेटरी है क्या? अगर कोई डीन पर्सन अगर है लिया उसके ऊपर डीन है, वो डायरेक्टर चाहे नहीं भी हो, तो कंपनी लोग बोलता है कि ये कंपनी का कंप्लायंस नहीं है, ये पर्सनली पर्सन का है। जिस भी पर्सन के पास डीन है उसको करना ही पड़ेगा। उसका कोई सरेंडर करने का है ऑप्शन? डीन सरेंडर सर कंपनी लॉ में सिर्फ एक ही सिचुएशन, दो ही सिचुएशन में हो सकता है प्रैक्टिकली। एक तो जब आपने कभी डीन लिया लेकिन कभी यूज नहीं, नेवर यूज, अगर नेवर यूज डीन है तो आप सरेंडर कर सकते हो, या दूसरा डेथ के बाद ही सरेंडर हो सकता है। और कोई सिचुएशन नहीं है कंपनी एक्ट में डीन सरेंडर करने की। Someone has mentioned what should be done in case of death of loan provider. Sir, ये question incomplete है. Can you just complete this question so that I am able to answer it? सर ये लोन देने वाले एक्सपायर हो गया है, तो एज ए ऑडिटर वी आर व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ? See sir, अगर देखो सर कंपनी ने कोई लोन लिया है तो कंपनी will enter into any agreement for that loan, चाहे oral agreement और written agreement हो, it is depend upon the company. तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिस पर्सन से लोन लिया है उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी oral terms है कि उसके केस में उसका नॉमिनी है whatever जो पर्सन होगा तो आपको लोन उसके नाम पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो oral terms है या written terms है, it is totally depend upon the company. मानी जाएंगी। ओरल टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर ओरल टर्म्स को देखो हम रिटर्न में अपने हम नहीं डिफाइन कर सकते। यू हैव टू कि व्हाट इज देयर अरेंजमेंट विद द पर्सन टू हूम यू हैव टेकन द लोन, क्योंकि कंपनीज एक्ट या कोई लॉ ये मैंडेटरी नहीं करता ना कि आपने लोन लिया तो एग्रीमेंट में एंटर होना ही है। बट यस डेफिनेटली आप लोन लोगे तो किसी ओरल टर्म्स पे तो लोगे, चाहे किसी भी पर्सन से लोगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आस्क टू द कंपनी ओनली। ओके सर। यस उसके बिल के बेस पे भी कर सकते हैं। अब डेफिनेटली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ओरल टर्म्स पे आपने लोन लिया है, उस पर्सन ने अपनी विल बनाई हुई है कि उससे ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन किसी के साथ किया है तो उसके नॉमिनी को वो मिलेगा, जिस पर्सन का भी वो विल में लिखता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आल्सो यू कैन मेंशन। ओके थैंक यू। दिवेश जी मेरा क्वेश्चन है यस सर। ये जो लोन टेकन और गिवन के जो भी कंडीशंस हैं, हाँ। ये तो डूरिंग द ईयर जिस ईयर में हमने लोन्स लिए हैं या दिए हैं उसी साल के लिए ना रिपोर्ट में, जैसे आप कारों में क्वालिफाई करना है, ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई करना है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितने भी लोन लिए दिए हैं उन सभी को आपको चेक करना है और उन सभी पे आपको कंडीशन चेक करनी है। भाई मेरा कहना मतलब ये है, जैसे मान लो हम प्रीवियस ईयर के लोन है जो ऑडिट जिसकी ऑडिट हो चुकी है जिस ईयर की, और नेक्स्ट ईयर की हम ऑडिट कर रहे हैं, तो वो क्वालिफाई हुए नहीं हुए वो तो लास्ट ईयर ही होने दे, हमें करंट ईयर में तो उसको लुकआउट नहीं करना ना, लुक आफ्टर नहीं करना। करंट ईयर में नहीं, करंट ईयर में तो आपने जो करंट ईयर के लोन से आपको तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट करना है। लास्ट ईयर में कोई नॉन कंप्लायंस किया है उसको आपको करंट ईयर में रिपोर्ट नहीं करना है। नहीं करना है, ठीक है। यस सर। और किसी मेंबर्स का कोई क्वेरीज हो तो अनम्यूट करके पूछ ले, अदरवाइज फिर ये सेशन कोई जी क्वेरी तो मेरे ख्याल में कोई और नहीं है। ओके सर, आई थिंक ऑल द क्वेरीज ऑफ द मेंबर इज क्लियर टुडे, और जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं विल बी क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू दिवेश जी, आपने बहुत अच्छे से डेलिब्रेट किया आज, ये बहुत अच्छे से कंपनी लोग के सारे सेक्शंस को एलिब्रेट किया, और थैंक यू सर।
और हमारे मेंबर्स ने भी इसको अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया। तो थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. आज की सेशंस के लिए। मोहित जी, Yes, sir. हाँ जी सर। एनीथिंग एल्स? Let me see. I think all the queries has been resolved, and still, if any member have any query, you can communicate to Deveshji over email or over phone, and he will resolve your query related to the mentioned topic. So I again heartily thank Deveshji for his wonderful deliberation and interactive session. And on face-to-face seminars, we used to thank all the speakers by giving mementos or any gift just to acknowledge them. But since it's a online faceless seminar, so I, on behalf of all the members, would thank Deveshji over this platform, and will also acknowledge this that through email also. So thank you, Deveshji, for a wonderful deliberation. I request you to please share the required material to Birbanji so that we can share with the participants. Definitely, I will share that. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir.